मैं मोहतरम सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो नामज़द वफाकी वज़रा और वज़ीर मुमलिकत से इनके ओहदे का हलफ लें। Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I Father, do solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith that I will bear true faith and allegiance and allegiance Pakistan, to Pakistan, and that as that as Federal Minister I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my functions to the best of my ability, honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interest of the sovereignty, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being, and prosperity of Pakistan. and prosperity of Pakistan. That I will serve That I will strive to preserve the Islamic ideology, to preserve the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan. which is the basis for creation of Pakistan. That I will not allow my personal That I will not allow my personal interest to influence interest to influence my official conduct or my official decisions. my official conduct or my official decisions. That I will preserve, That I will preserve, protect, protect, and defend and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. That in all circumstances That in all circumstances I will do right I will do right to all manner of people to all manner of people according to law, according to law, without fear or favor, without fear or favor, affection or ill will. affection or ill will. And that I will not directly or indirectly communicate That I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any or matter reveal to any person which shall be brought under my any consideration matter which shall be brought or shall become known to me as as Federal Minister, except as may be required for the due discharge of my duties for the due discharge of my duties as Federal Minister, or as may be specially permitted by the Prime Minister. especially permitted by the Prime Minister. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Thank you. आपको बताएं कि वफाकी काबीना की तकरीब हलफबरदारी की तकरीब और सदर पाकिस्तान वफाकी काबीना से हलफ ले चुके हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद हैं और हलफ लेने के बाद कलमदान भी सौंपे जाएंगे और इस हवाले से इजलास भी तलब किया गया है। वफाकी काबीना का इजलास शाम 5 बजे तलब किया गया है। नाज़रीन, 19 रुकनी वफाकी काबीना है जिससे हलफ लिया गया है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से। वफाकी काबीना के लिए 19 नाम फाइनल किए गए थे। इनमें मोहसिन नकवी, अवैस लगारी, कैसर अहमद शेख, खालिद मकबूल सिद्दीकी, इसके अलावा इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक भी अपनी सेनेट की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद उन्होंने भी वफाकी वज़ीर का ये काम करेंगे, जबकि शहज़ा फातिमा वज़ीर मुमलिकत होंगी। मोहम्मद औरंगज़ेब, अहाद चीमा और मोहसिन नकवी ने भी हलफ उठाया। ये तमाम तर मनाजिर आपने JNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी किए। 19 रुकनी काबीना है, जिसके अलावा आपको बताएं कि चौधरी सालिक, अब्दुल अलीम खान, अता तारड़, जाम कमाल और रियाज पीरज़ादा ने भी
हलफ उठाया है। रियाज हुसैन पीरज़ादा की जानिब से भी हलफ उठा लिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से 19 रुकनी काबीना से हलफ ले लिया गया है, जिसके बराह रास्त मनाजिर आपने JNN की स्क्रीन पर मुलाहिजा किया। एहसन इकबाल, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक, इसके अलावा अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल और रियाज पीरज़ादा के नाम भी इसमें शामिल हैं। इंजीनियर अमीर मकाम, अवैस लगारी, कैसर अहमद शेख और खालिद मकबूल सदीकी के नाम भी इस 19 रुकनी काबीना में शामिल है। कुछ ऐसी सियासी शख्सियात हैं जिनको माजी में जो वजारतें मिली हुई थी वफाकी तौर पर, उनको इस बार भी वही वजारतें मिली हैं, जिसमें मुसद्दिक मलिक का नाम भी शामिल है। वो माजी में भी वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम रहे हैं और इस बार भी उनको तकरीबन सेम वजारत ही मिली है। वफाकी काबीना के लिए 19 नाम फाइनल किए गए थे और 19 मेंबरान ने इस वक्त हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 19 रुकनी काबीना से हलफ लिया है, जिसके मनाजिर आपने JNN की स्क्रीन पर मुलाहिजा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके हमरा ही मौजूद थे। अगर बात की जाए नामों की तो चौधरी सालिक, अब्दुल अलीम खान, अताउल्लाह तारड़, जाम कमाल और रियाज पीरज़ादा के नाम भी इसमें शामिल हैं, जबकि इंजीनियर अमीर मकाम, अवैस लगारी, कैसर अहमद शेख और खालिद मकबूल सदीकी ने भी हलफ उठाया है। इसाक डार और मुसद्दिक मलिक सेनेट की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद बतौर वफाकी वज़ीर काम करेंगे। इसी तरह शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा वज़ीर मुमलिकत होंगी, जबकि मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद चीमा और मोहसिन नकवी ने भी हलफ उठाया है। इसाक डार वज़ीर ख़ारजा, मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा होंगे और इससे पहले ख्वाजा आसिफ भी माजी में वज़ारत दिफ़ा का जो ओहदा है उस पर विराजमान रह चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तकरीब ऐवान सदर में हुई। आसिफ अली जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब के लिए बग्गी में तशरीफ़ लाए। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सदर ममलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। आसिफ अली जरदारी का अपनी बेटी आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी बनाने का फैसला। आसिफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। उमूमन खातून अव्वल का दर्जा अहलिया को दिया जाता है। अहलिया ना हो या वो लक़ब ना लेना चाहे तो फैमिली में से किसी भी दूसरी खातून को खातून अव्वल का दर्जा दिया जा सकता है। इक़्तिदार के ऐवानों में एक और पुरवकार तकरीब ने सदर मुमलिकत को ऐवान में गार्ड ऑफ ऑनर पे। सदर आसिफ अली जरदारी रवायती अंदाज में सदारती बग्गी में सवार होकर ऐवान सदर पहुंचे। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने पर सलामी पेश की। कौमी तराना बजाया गया। नौमुंतखब सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। बाद में सदर मुमलिकत से ऐवान सदर के अमले का तारुफ करवाया गया। आसिफ अली जरदारी ने स्टाफ अरकान से फर्दन मुसाफा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी तकरीब में मौजूद रही। आसिफ अली जरदारी ने एक नई रवायत कायम कर दी। अपनी दुख्तर आसिफा भुट्टो जरदारी को खातून अव्वल का दर्जा दे दिया। आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल का प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। आसिफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। आमतौर पर खातून अव्वल का दर्जा अहलिया को दिया जाता है। आसिफा भुट्टो बतौर खातून अव्वल बैरून मुमालिक से आने वाले मुमलिकत और हुकूमती सतह के वफूद की मेज़बान होंगी। तो खबर यह है कि आज़ाद अरकान के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का मामला शहरी मौलवी इकबाल हैदर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंतख़ाबात में एक नशिस्त भी नहीं जीत सकी, इसलिए उसे गैर पार्लिमानी जमात डिक्लेयर किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को गैर पार्लिमानी जमात डिक्लेयर करने की यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, बताइएगा अब ये क्या मामला है? देखिए, ये आज़ाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का ये मामला है। शहरी मौलवी इकबाल हैदर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में वफाकी और सूबाई हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले अरकान को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को गैर पार्लिमानी जमात डिक्लेयर किया जाए, ये इस्तदा की गई है। जबकि इस्तदा में ये भी कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद अरकान की शमूलियत को आइन के आर्टिकल 51, 25, 17, 9 और 5 के खिलाफ वर्जी करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को गैर सियासी जमात करार दिया जाए। कौमी सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बतौर सियासी जमात ट्रीट करने से रोका जाए। और इस में ये भी कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंतखाबात में एक नशिस्त भी जीत नहीं सकी और आज़ाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने शमूलियत 51(6)D के खिलाफ वर्जी की है और आज़ाद अरकान इंतखाबात जीतने वाले जमात में शामिल होना चाहिए, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को FIA के नोटिस दिए जाने पर हिरासा किए जाने के खिलाफ केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुल्ज़िमान का सुराग नहीं लगा सके। अटर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के IG हैं,
इन आईजी को हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए, क्या आपको 4 सदियां चाहिए? चीफ जस्टिस ने आज इस्लामाबाद से कहा कि पूरा मुल्क आपकी कारकर्दगी देख रहा है। आज इस्लामाबाद के रवैये से लगता है कि वो सहूलतकारी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि असद तूर के खिलाफ मुकदमे में संगीन नौयत की दफात आयद की गई हैं। हसास मालूमात समेत आयद दीगर दफात का इतलाक कैसे होता है? इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है, जबकि FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। ये तो अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सहाफियों को FIA नोटिस और हिरासा किए जाने से मुतल्लिक केस सुना। चीफ जस्टिस ने मतियुल्लाह जान अगवा और अबसार आलम पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन आप इन मुल्जमान का सराग नहीं लगा सके। अटार्नी जनरल साहब ये किस किस्म के IG हैं और इनको हटा देना चाहिए। प्रेस एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि असद तूर जेल में है। चीफ जस्टिस ने FIA अफसर से सवाल किया कि असद तूर पर जो दफात लगाई गई वो कैसे बनती हैं? क्या आपके इदारे में कोई पढ़ा लिखा है? कोई नहीं तो फिर उर्दू में तर्जमा करवा लें। क्या हमने सहाफियों के खिलाफ आपको कोई शिकायत की थी? जजों का नाम लेकर आपने सहाफियों को नोटिस भेज दिए। आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके अपना काम निकाल रहे हैं। क्यों न FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दें। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया, जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो अवाम में अदलिया के इमेज खराब होगा। दौरान समात अटार्नी जनरल ने तस्लीम किया कि असद तूर पर FIR में पीका की कुछ दफात का इतलाक नहीं बनता था। अदालत उज़्मा ने असद तूर केस में FIR पर नजरसानी का मामला अटार्नी जनरल पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने FIA और पुलिस की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। अदालत उज़्मा ने FIA और पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए समात 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। और अब बात करें कौमी असम्बली के बाद सेनेट इंतखाबात का मरहला आन पहुंचा। ऐवान बाला में 6 खाली नशिस्तों पर 14 मार्च को वोटिंग होगी। सेनेट से आज रिकॉर्ड 52 सेनेटर्स मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रिटायर हो गए। ऐवान बाला में आम इंतखाबात अप्रैल के पहले हफ्ते में मुनक्किद होंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में तब्दीली का आगाज। सेनेट की 6 खाली होने वाली सीटों पर जिमनी इलेक्शन 14 मार्च को होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। ऐवान बाला के 6 अरकान ने आम इंतखाबात जीतकर सेनेट की नशिस्तों से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने वालों में यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाह मेहताब, सरफराज बुट्टी और प्रिंस अहमद उमर शामिल हैं। ऐवान बाला से आज 52 अरकान मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स में से 13 का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के 12 और PTI के 8 सेनेटर्स शामिल हैं। JUIFP के मैप और नेशनल पार्टी के 2 अरकान शामिल हैं। साबिक फाटा के 4 अरकान, मुस्लिम लीग फंक्शनल, MQM और जमात इस्लामी का एक सेनेटर भी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रिटायर्ड होने वालों में शामिल है। उधर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। ऐवान बाला के आम इंतखाबात के लिए शेड्यूल रवा हफ्ते जारी होने का इम्कान है। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिए गए हैं। चारों सूबों से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। पंजाब और सिंध से एक अक़लियती नशिस्त पर भी इंतखाब होगा। इस्लामाबाद की 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इलेक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं कि हम क्रैक डाउन कर रहे हैं, किसी से कोई रियायत नहीं होगी। गवर्नेंस के शदीद मसाइल हैं, इसको हल करने में वक्त लगेगा। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बुनियादी हक देंगे, लेकिन अगर सियासत और जमहूरियत की आड़ में अदम इस्तेहकाम फैलाएंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। समझते हैं कि आप अपने जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं नहीं होने दूंगी। ये उसमें नहीं। आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं, इसलिए दरख्वास्त दी है कि बानी PTI से दस्तावेजात के हमरा मुशावरत की इजाज़त दी जाए। अदलिया से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, उम्मीद करते हैं हमें भी इंसाफ मिलेगा। दरख्वास्त ये फाइल कर दी थी कि जिस तरह नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो सारे डॉक्यूमेंटेशन में लेके गया था खान साहब से कंसल्टेशन के लिए।
क्योंकि सीटें ज़्यादा होती है, आपने प्रोफाइल लिखा हुआ होता है तो डिस्कशन बड़ा ज़रूरी है। लास्ट टाइम हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी थी और मुझे इजाज़त दे दी कि आप डॉक्यूमेंटेशन लेकर के खान साहब के साथ कंसल्ट करके फाइनल कर सकते हैं। उम्मीद तो है इंशाअल्लाह ताला, हमेशा से अदलिया से बड़ी तवक्कुआत हमारे अदलिया ही है, बाकी किसी तरफ तो देख नहीं सकते। अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया पे एतमाद भी करते हैं, हर मरतबा आते हैं, मुतबाना गुजारिश करते हैं और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमें भी इंसाफ होगा। हमारे खिलाफ केसेस जिस स्पीड के साथ डिसाइड हुए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट है, हम ये उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट अदलिया ने ये देखा, ये जुडिशल नोटिस भी ले सकते हैं। अदलिया की जिम्मेदारी बनती है कि उसका भी नोटिस ले, क्योंकि इनके सेशन जजेस इनके सुपरविजन के अंदर है, तो इसलिए ऐसे जजमेंट से और ट्रायल नहीं होने चाहिए, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अदलिया से बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह हमें भी मिलेगा सारी। उधर रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब कहते हैं आसिफ जरदारी की सेहत इस काबिल नहीं कि वो सुप्रीम कमांडर का ओहदा संभाल सके, उनसे मफाहमत की बात ना की जा सकती। हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए ताकि कौम हकाइक से दूर रहे। ऐसे हालात में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फैशिस्ट हुकूमत जो है ये अपने होश और हवास जो है वो खो बैठी है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ आपके प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो, जो जिसको पहले हम लोग ट्विटर कहते थे, इंस्टाग्राम हो, इनकी स्पीड्स, इनको ब्लॉक करना वो आज भी वो कर रहे हैं और वो खौफ है कि पाकिस्तान की नौजवान, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, उनको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन और खबर सही तरह ना पहुंच सके। नाज़रीन, रमज़ान से कबल ही मुल्क भर में अशाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। सब्जियां, फ्रूट, दालें महंगी हो चुकी हैं। बाजारों की सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। आपको बताएं कि महंगाई उरूज पर है, इस हवाले से शहरी भी काफ़ी परेशान हैं। रमज़ान मुबारक करीब है, इस हवाले से दालों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है और मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद हसन, पेशावर से अलिशबा खटक और कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे सोनिया खानजादा। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर से जानते हैं हमारे साथ अहमद हसन। जी अहमद, बताएगा लाहौर के बाज़ारों की क्या सूरत हाल है, महंगाई कितनी अरूज पे है? रमज़ान मुबारक की आमद है और ऐसे में हर मुसलमान की, हर रोज़ादार की ख्वाहिश होती है कि वो अपने दस्तरखान को जो है खूबसूरत बना सके, मज़ेदार पकवान बनाए जाए। ताहम क्योंकि महंगाई अब बेकाबू होती दिखाई दे रही है, महंगाई का जिन जो हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि बोतल में बंद किया जाएगा, वो अब बिफरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त मॉडल बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी आज बड़ी तादाद में अशिया खुर्दनोश खरीदने आए हैं। अगर हम ख़ासतौर पर सब्जियों की बात करें तो आलू जो है वो इस टाइम मार्केट में 57 रुपये मिल रहा है, जबकि अगर आप बाहर से मार्केट से परचेज करते हैं तो आलू जो है वो 70 से 80 रुपए में दस्तयाब है। दूसरी जानिब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्याज जो है वो 235, अदरक 515 रुपये है। और जब हमारे यहाँ पर बात हुई दुकानदारों से तो उनका कहना है कि 2 दिन में अदरक की जो कीमत है उसमें 20 रुपये का इजाफा हुआ है। इसी के साथ मिर्च 300, टमाटर 165 रुपये, लहसुन 615 तक जा पहुँचा और लहसुन की जो कीमत है उसमें भी 2 रोज़ में 20 रुपये से जायद का इजाफा देखने में सामने है। और उसके अलावा शिमला मिर्च की अगर बात करें तो 290 रुपये से तजावुज़ करती दिखाई दे रही है। इस हवाले से मैं आपको बता चलूँ कि मैं इस वक्त मॉडल बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वगैरह चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस कंट्रोल में है। अगर आप बाहर जाते हैं और मार्केट से कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो हर चीज़ की कीमत में 20 से 30 रुपये का मनमाना इजाफा किया जा रहा है। शहरी जो है वो बिलबिला उठे हैं, उनका यही कहना है कि इस हवाले से हुकूमत कोई खातिर खा इकदाम करती दिखाई नहीं दे रही। जहाँ जाते हैं महंगाई का, आप ये कह रहे हैं कि शहरी जो है वो इंतहाई परेशान है महंगाई से और कल जो है वो पहला रोज़ा होने का इम्कान भी है, लेकिन शहरी जो है वो किसी भी रिलीफ के मुंतज़िर हैं। अलिशबा, आप बताइएगा पेशावर की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है जिस तरह आप बता रहे थे अहमद के लाहौर में बुरे हालात हैं अवाम के? जी बिल्कुल, आमद रमज़ान की आमद है। पेशावर के शहरी जो है बड़ी तादाद में जो है होल सेल मार्केट पहुँचे हुए हैं इस वक्त और मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की शॉपिंग में मसरूफ़ है। यहाँ हम अगर दालों की कीमत की बात करें तो यहाँ माश की दाल जो है वो 520 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जो कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान 480 तक रही है। 40 रुपये इजाफा जो है इसमें देखने आया। इसी तरह अगर मसूर की दाल की बात की जाए तो 280 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की
जा रही है उसकी कीमत में भी 60 रुपए तक इजाफा जो है वो देखने को आया है। बेसन की फी किलो कीमत जो है यहाँ 200 से 250 तक है। इसी तरह अगर और दीगर दालों की हम बात करें तो जो चने की दाल है उसकी कीमत यहाँ 320 रुपए है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ आने वाली शहरियों से भी हमने बात की तो उनका यही कहना है कि दालें जो है वो मुतवस्सित तबके की खुराक है। हम आम दिनों में जो है दालों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर शहरी चाहता है कि वो रमज़ान में जो है अपने दस्तरखान को अच्छे खानों से सजाए, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाए, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी है कि वो इनकी कुव्वत खरीद से बाहर है। वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने आने के साथ ही रमज़ान में रिलीफ का ऐलान किया था, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बाज़ारों में चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो है तमाम जो दुकानदार है वो अपनी मनमानी। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची से हमें ज्वाइन किया है सोनिया खानजादा ने। जी सोनिया, बताएगा कराची के अवाम क्या कहते हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। आपको बताएं कि यहाँ जो है वो गिरा फरोश हों या फिर सरगर्म दिखाई दे रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। कोई चीज़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि अगर मैं बात करूँ मार्केट की तो मार्केट में जो कीमतें बढ़ रही हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन मुझे तो सरकारी नर्कनामे में भी कीमतें जो हैं वो 1 से 2 रोज़ के अंदर तकरीबन 100 से 150 रुपये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो सेब जो है वो 210 रुपये जो है वो सरकारी नर्कनामे में लिखा हुआ है, लेकिन मार्केट में जब हम आए तो तकरीबन 70 से 80 रुपये इजाफे से 280 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह खरबूजे की कीमत भी तकरीबन 139 रुपये लिखी हुई है, लेकिन मार्केट में जो है वो 150 से 180 रुपये के दरमियान खरबूजा फरोख्त हो रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम केले की बात करें तो केले में भी तकरीबन 120 रुपये मार्केट सरकारी नर्कनामे कराची में भी बुरे हालात हैं। सोनिया खानजादा आप हमें कराची से अपडेट कर रही थी। लिशबा खड़क पेशावर से, अहमद हसन लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। हजामरो क्रैक के करीब 5 मार्च को माहीगीरों की कश्ती के हादसे का मामला है। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 10 लापता माहीगीरों के जसद खाकी खुले समंदर से निकाल लिए हैं। तो इस हवाले से आपको बताएं कि 10 लापता माहीगीरों की लाशें निकाली गई हैं। तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से ये बताया गया है। माहीगीरों की तलाश में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से ये पूरा हुआ है और 10 माहीगीरों को जो है उनकी लाशों को निकाल लिया गया है। तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से बताया गया है ये ऑपरेशन था और इन लाशों को निकाल लिया गया है। माहीगीरों की तलाश जारी थी और रेस्क्यू ऑपरेशन ये कामयाब हो चुका है। 10 माहीगीरों की लाशों को कामयाबी के साथ निकाल लिया गया है। अहम खबर है इसके हवाले से आपको बताएं कि तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक 10 लापता माहीगीरों की लाशें निकाल ली गई हैं। माहीगीरों की तलाश में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी हासिल हुई है और 10 माहीगीरों की लाशें निकाली गई हैं।